Hello guys, how are you all? I hopefully believe that you all are quite fine, and once again I warmly welcome all of you in this video. Students, today over here we will discuss once again about our chapter 7 from our textbook Vistas, Evans tries and O level. And in this second video, first of all, we will discuss about writer, dramatist of this play, Evans tries and O level. Actually, Colin Dexter, whose complete name is Norman Colin Dexter, was an English crime writer. The word you should remember that crime writer known for his Inspector Morse series of novels. Inspector Morse is a series of novels which were written between 1975 and 1999 and adapted as an ITV television series in Europe. Actually, Inspector Morse from 1987 to 2000, it was so famous episodic serial series of a story that has been written and also published by Norman Colin Dexter. So, Norman Colin Dexter was born on 29 September 1930 in Stamford, United Kingdom, and he was died on 21st March 2017, Oxford, in England. So, Dexter was one of the famous, eminent writer, dramatist, novelist of United Kingdom and the world, of course. This story, Evans tries an O level, is about a cunning prisoner, Evans, and this chapter begins with the telephonic conversation of secretary of the examination board who gets a call from HM Prisons governor of HM Prisons, Oxford Prison. It is known as Oxford Prison. Um, Secretary of the examination board gets a call from the governor of Oxford Prison. Oxford Prison. In Oxford Prison, Evans, whose complete name is James Roderick Evans in this play, जेम्स रोड्रिक इवांस को ऑक्सफोर्ड प्रिजन में एक कैदी के रूप में रखा गया था बिकॉज ही वॉज अ थीफ. हिज बिजनेस वॉज स्टीलिंग, deceiving, cheating people, and not only people but also administrators, क्योंकि वह इवांस 3 बार जेल के कर्मचारियों को, जेल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको धोखा दे करके, डिसीव करके वो जेल से भाग चुका था 3 बार. अभी चौथी बार उसको ऑक्सफोर्ड प्रिजन में जेम्स रोड्रिक इवांस को रखा गया था. एक्चुअली जेम्स रोड्रिक इवांस is not a habituated thief in this play. Actually, he was suffering from kleptomaniac disease, and that's why he used to steal something, and he used to cheat also, deceive also people
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको जेम्स रोड्रिक इवांस को एक बीमारी थी जिसका नाम है क्लिप्टोमैनिक डिजीज, जिस बीमारी में हम वस्तुओं को चुराने का कार्य करते हैं, आदतन चोर नहीं होते हैं। वी डू नॉट बिकम हैबिचुएटेड थीप। एक आदतन चोर नहीं होते हैं, लेकिन चोरी करने का एक प्रॉब्लम आ जाता है, माइंड में क्रिएट होता है कि हम जगह जगह वस्तुओं की चोरी करते हैं। सो इट इज़ क्लिप्टोमैनिक डिजीज, जिसमें कोई व्यक्ति आदतन चोर नहीं होता बट वो चोरी करता है। ऐसा जेम्स इवांस के साथ था, जेम्स रोड्रिक इवांस के साथ भी ऐसा था। इन स्पाइट ऑफ दीज डिसएबिलिटीज, चोरी करने की ये आदत, लोगों को धोखा देने की आदत के अलावा देखा जाए तो इवांस एक बहुत ही खुश मिजाज और अच्छा इंसान था। ही वॉज नॉट अ वायलेंट फेलो, ही वॉज नॉट वायलेंट, वो हिंसक नहीं था, बट वो एक अहिंसक व्यक्ति था जो हिंसा नहीं करता था। प्लीजिंग मूड में रहने वाला इंसान था जेम्स रोड्रिक इवांस। Here, the story is totally about Evans, who was also called the Break. Evans को the Break भी कहा जाता है। the Break क्यों कहा जाता है the Break जेम्स रोड्रिक इवांस को? क्योंकि इसने कई बार जो है 3 बार इससे पहले जेल के कर्मचारियों को धोखा दे करके जेल से फरार हो चुका था। जेल की जो सुरक्षा है उसको तोड़ करके जेम्स रोड्रिक इवांस भाग चुका था, इसलिए इसका नाम दी ब्रेक भी रख दिया गया। हु ब्रेक्स prison, jail. He got this name because he was quite good at breaking out of prison. However, Evans was now brought to ऑक्सफोर्ड प्रिजन। उसको फिर ऑक्सफोर्ड प्रिजन में लाया जाता है, वहाँ उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल ऑफ सच स्टंट्स अगेन, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रिपीट सच स्टंट वंस अगेन बाय जेम्स रोड्रिक इवांस, क्योंकि ऑक्सफोर्ड प्रिजन की सुरक्षा बहुत अधिक थी। 2 ऑफिसर विशेष रूप से इवांस की सुरक्षा के लिए लगे थे कि यह भाग न सके। इसलिए क्या करता है कि इन दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट हिज अटेम्प्ट टू ब्रेक थ्रू यूजिंग अ वेरी क्लेवर प्लान। बेसिकली he uses an O-level exam to try and break out the prison. Is why this exam carries importance, और यही कारण था कि एग्ज़ाम काफ़ी महत्वपूर्ण था। जो जेल के ऑफिसर्स थे उनको भी लग रहा था कि कहीं यह कोई जेम्स इवांस का ट्रिक तो नहीं है, कोई इसका कनिंगनेस, क्लेवरनेस तो नहीं है, ये फिर से जेल से तो भागना नहीं चाहता है। हुआ ऐसा ही, जेल की सुरक्षा के बावजूद भी जेम्स रोड्रिक इवांस अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो अधिकारी थे, जो वहाँ के गवर्नर थे, उन सबको धोखा देता है और फाइनली ऑक्सफोर्ड प्रिजन से भी वो भाग जाता है। फिर पुनः उसको एक होटल से गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ भी वह प्रिजन के, ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं उनको धोखा देता है और पुनः वह फ्री हो जाता है। इन दिस वे वह एक फ्री लाइफ इंजॉय करता है, फ्रीडम को जो है एंटरटेन करता है अपने लाइफ में। इस प्रकार जेम्स रोड्रिक फाइनली वी कैन से दैट वो जेल को तोड़ने में बिल्कुल माहिर है और जेल से भाग जाता है। लास्ट ऑफ द
moment of this play, we can say. So over here, I hope that you all would like it. Thank you, all of you. See you again in next video. Thanks.